جہاں زیب اسلام آباد سے. جی جہاں سے صاحب. جی اچھا سر آپ نے پنڈت کوشچن اکاؤنٹ پاس کر لیا نا؟ جی پنڈت اکاؤنٹ پاس کر لیا نا سر آپ نے؟ میں نے آپ اللہ کے فضل سے اور آپ کی محنت سے ایک اکاؤنٹ پاس کر کے اس سے وڈرا بھی لیا ہے. تو آج اور تک آپ نے شیئر بھی نہیں کیا، ہمیں بتایا بھی نہیں، ہم نے میں کوئی آپ سے نہیں حصہ میں نے کرنا تھا. نہیں میں نے آپ کو فنڈیڈ کا بتایا تھا، وڈرا کا شاید نہیں بتایا. فیز 2 کا پاس کرنے کا بتایا تھا آپ نے، اس کے بعد لائیو کب ملا اچھا اور اچھا کیسا ایکسپیرینس رہا، نہیں یہ باتیں آپ نے ہم سے شیئر نہیں نہیں کی. سوری، پھر میں بھول گیا ہوں گا. اصل میں میرا واٹس ایپ بھی چینج ہوا تھا نا، تو آپ نے نیا پیسے میرا زیادہ مل گئے تھے، آپ خرچ کرنے چلے گئے تھے اس میں. نہیں سر، واٹس ایپ چینج ہوا تھا تو نا میں نے نیا واٹس ایپ میں آپ نے مجھے ایڈ کیا تھا، تو میں نے کہا شاید پرانے واٹس ایپ پہ آپ کو بھیجا ہوگا نا. اور باقی آج کل آپ سر مصروف اتنے، آج کل آپ میرے میسیج نہیں پڑھتے، میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو. تو آپ ہمارے نہیں ٹیچر اچھی ہیں بات سر. نہیں، اچھی بات نہیں. میرے پاس نا اس وقت رات میں نے کافی سارے میسیجز پڑھے ہیں، اچھا اور اچھا. اصل میں نا بہت زیادہ میسیج میں آپ کو کیا بتاؤں. ہاں چلے نہیں آج آپ صحیح، لوگوں سے شیئر کر اندازہ لیتا ہے، ہوں. ایک منٹ، اندازہ ہے لوگ سر، زیادہ اندازہ. نہیں کر رہے ہیں سارے. نہیں نہیں پہلے اندازہ ہے 55 سر، دیکھتے ہیں، 49 بالکل سر سارے اندازہ آنے ہے. آپ لوگوں کے ساتھ اپنی پرابلم شیئر کرتے ہیں. ایسے ہی. سر کوشچن پوچھ لوں؟ پوچھیں. اچھا سر، کوشچن یہ ہے کہ آپ نے نا ڈیٹ، ہماری جو ٹائم تھیوری ہے نا، اس میں جی لکھا ہوا ہے کہ اگر 10:30 بجے ایشین ٹائم چل رہا ہے اور 10:30 ہو گئے ہیں اور جی مارکیٹ نے ابھی تک $10 کی نہیں بنائی ہے، ہم جی $10 کے اوپر انٹری لے لیں گے نا پہلی. ٹھیک ہو گیا. 10:30 بجے. اب سر میں نے کوشچن یہ ہے کہ 10:30 بجے ہم نے انٹری لے لی جی $10 پہ. اب مارکیٹ $12 پہ گئی، $13 پہ گئی، $2-3 اوپر گئی نا، اور ایشیا سیشن اینڈ ہو گیا. ٹھیک ہے، ہوں لندن شروع ہو گیا. تو اب ہماری وہ انٹری تو ایشین سیشن کی چل رہی ہے، اب ادھر سے لندن بھی سٹارٹ ہو گیا ہے. تو اب سر ہم کیا کریں گے پھر؟ مطلب کیونکہ آپ نے کہا ہے کہ آپ ایشین کی انٹری 12 بجے سے پہلے پہلے کلوز کر دیں. اگر ہمیں موقع نہیں ملا کلوز کرنے کا، مارکیٹ $12-13 پہ گئی اور سنوکر گر گئی، اس کے بعد وہ دوبارہ لندن سے اسٹارٹ ہو گیا، پھر اب ایک ہماری انٹری ایشین کی چل رہی ہے. اب پھر ہم لندن کے لیے کیا کریں گے؟ اس انٹری کا مطلب لندن کی نہیں نکال کے دوبارہ انٹری لیں گے، یا بس ایشین کے نکلنے کا ویٹ کریں گے، یا ڈے ٹائم پہ چلے جائیں گے، کیا کریں گے؟ اچھا. لیکن جہاں صاحب اگر آپ نے انٹری ایشین ٹائم میں لے لی ہے، ٹھیک ہے. تقریباً 80% چانس یہی ہوتے ہیں کہ آپ کی انٹری نکل جاتی ہے. کچھ نہ کچھ دے صحیح. جاتی ہے، تھوڑا دے جاتی ہے، بعض اوقات دے جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں ہوتا کہ نہیں دیتی. دوسری اچھا بات اچھا. یہ ہوتی ہے کہ حالات بھی ہوتے ہیں نا. دیکھو ہم بیسیکلی جو کام کر رہے ہیں نا، ہم مارکیٹ سائیکالوجی پہ کر رہے ہیں. صحیح ہے سر. آپ نے دیکھو کہ میں ٹیکنیکل پہ کم بات کرتا ہوں، ایسے ہی ہے، ایسے زیادہ ہی ہے، فنڈامنٹل سینٹیمنٹل پہ بات کرتا ہوں. ایسے ہی بات ہے. کیونکہ ٹیکنیکل کا رزلٹ نا ہمیں 20%، 30% سے زیادہ آج تک نہیں ملا. ہر بندے نے پاس کی ہے اس مارکیٹ. صحیح کہہ رہے ہیں، صحیح کہہ رہے ہیں. سلام ہمارا بھی قبول فرمائیں. جی وعلیکم السلام شاکر صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے، خیریت سے ہیں؟ نہیں سر، اگر کلوز نہیں ہوئی پھر کیا نیکسٹ ہمارا ہوگا، یہ پوچھنا چاہ رہا جی تھا. اس میں یہ ہے نا کہ ایسا کبھی کبھار ہوگا. اگر آپ کی ٹھیک ہے. انٹری کلوز نہیں ہوئی تو آپ دیکھیں مارکیٹ پہ آپ بیٹھے ہیں، موقع پہ موجود ہیں، دیکھیں اچھی سپورٹ ریسسز کہاں ہے، اس ٹھیک ہے. انٹری کو مینیج کرنے کی کوشش کریں. اگر وہ پھر بھی مینیج نہیں ہو پا رہی تو اس کو ایس ایل لگائیں، جو ہم نے طریقہ بتایا ہوا ہے. ایسے ہی ہے. ڈے ٹائم فارمولے کے تحت $21 آپ کا ایس ایل ہے، یہ ذہن ٹھیک میں ہے. رکھیے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہوگی. اگر آپ نے ٹھیک ہے. $10 پہ انٹری لے لی ہے تو آپ کا ایس ایل جو ہے نا $21 پہ. ٹھیک ہے، اس دن آپ کو ٹھیک تھوڑا بہت ہوگی. لاس پڑتا ہے، ویسے ہوتا نہیں ہے ایسا، لیکن صحیح ہے. کبھی کبھار اگر ایسا ہو بھی جائے 2-3 مہینے میں ایک آدھی چانس آئے گا ایسا. اگر آ صحیح بھی ہوگی. جائے تو پھر آپ نے فارمولہ کے مطابق وہ کریں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا سر. اچھا سر، اور باقی ایک بس آخری بات ہے، پھر آپ اپنا کنٹینیو کر لیں. وہ سر یہ تھا کہ فیبو لیول سر کوئی ٹائم نکال کے نا ایک بار ریوائز کروا دیتے، بس یہ ایک تھا بس آپ سے فیبو ریکویسٹ. لیول کے اوپر 2 بار لیکچر دے چکا ہوں، 3-3 گھنٹے. سر جی ٹائم تھیری پہ بھی 4-5 لیکچر ہو چکے ہیں. اب ایک نیکسٹ ویک رکھ لیں فیبو لیول پہ، آپ کی مہربانی ہے. ایک نیکسٹ ویک کروا لیکن دیں فیبو ویک لیول نہیں، پہ. پھر میں منتھ میں ایک مرتبہ رکھ سکتا ہوں. دیکھیں ویکینڈ ایک ہی ہوتا ہے. ابھی میری مسز مجھے بلا رہی ہیں، ہاں یہ بات بھی تو ٹھیک ہے سر. گھر کے منتھ کام میں کاج کر لیں، دیگر لیکن سر معاملات. نیکسٹ منتھ ایک بار فیبو لیول سمجھا دیں ضرور، جب بھی آپ کے پاس ٹائم ہو. جی دیکھیں ماشاء اللہ خالد نواز صاحب بھی تشریف لے آئے ہیں، اور ایک سائڈ پہ ان کے پیارے دوست شاکر صاحب بھی بیٹھے ہیں، اور جی نیچے السلام علیکم صاحب، آپ کم از کم یہ تو ٹھیک بتائیں ہے. آپ کو پہلا پے آؤٹ کس کمپنی کا ملا اور کتنا ملا اور کیا سر ایکسپیرینس رہا، تھوڑا سا یہ بتائیں. میرے سے پوچھ رہے ہیں سر. جی جہاں صاحب آپ سے سر میں نے مخاطب سر ہوں. میں ہاں نے ہاں نا سر میں نے ٹی ایف ٹی کا اکاؤنٹ لیا تھا، ٹھیک ہے. تو انہوں نے سر مطلب میرا $50,000 کا اکاؤنٹ تھا، تو میں جی نے اکاؤنٹ بھی ہو گیا اللہ کے فضل سے، آپ کی محنت سے. مائک سوری مائک میوٹ کر لیں، سارے لوگ اس کی آواز سنیں، آپ کو انکریجمنٹ ملے گی. میں مجھ سے شیئر کر لیں گے آپ لوگوں کو سنوانے کے لیے یہ بات. جی تو 50 کے اکاؤنٹ تھا، تو ٹھیک ہے. باقی اللہ کی فضل سے سر کی محنت سے جو ہے اس کو میں نے پاس کیا. اس کے بعد ٹھیک ہے. سر پھر میں نے اس کے اوپر نا تقریباً 1 ماہ ذرا آرام آرام سے کام کیا تھا، تاکہ ایک وڈرا مجھے پتہ لگے کہ دیتے ہیں کہ نہیں دیتے. تو میں نے سر تقریباً $600-700 کا کام کیا اس کے اوپر نا. ٹھیک ہے. تو مجھے سر انہوں نے میری مطلب فیس بھی ریفنڈ کی،
اور ٹھیک ہے $700 کا 85% وہ بھی ریٹرن کیا. اور ٹھیک ہے فیس کا مطلب فیس تھی نا، جس فار ایگزامپل اس کا مجھے 1.25% ریفنڈ کیا فیس کا. ٹھیک ہے مطلب فیس کے اوپر 25% ایکسٹرا بھی مجھے دیا انہوں نے. تو میرا ٹھیک جو وڈرا تھا وہ 3 دنوں میں آ گیا تھا، مطلب انہوں نے کوئی ڈیلے کچھ بھی نہیں کیا. تو میں ٹھیک خوش ہوا ان سے. ہاں اچھا تین ہے. دن میں آپ کو وڈرا ملا ہے؟ جی 3 دنوں کا انہوں نے 3 دن کا ٹائم مانگا تھا کہ جی 3 دن کے اندر آپ کا وڈرا آئے گا، اور 3 دن سے پہلے 2 دن میں ہی آ گیا تھا. ٹھیک ہے. ٹوٹل کتنا جی وڈرا آیا؟ سر تقریباً 870 $880 اتنا وڈرا تھا. چلو میں آپ کلاس میں بیٹھے، میں تو دیکھوں پھر ایکسپلین. $880 کا وڈرا تھا سر تقریباً نا. میں نے تو دوسرا لنک بھیجا آپ کو. جی جی سر. جی سر $880 کا وڈرا تھا. ٹھیک اور ہے اب سر اس کے بعد ہر 15 دن کے بعد وڈرا ملے گا. ٹھیک ہے. ابھی آپ کو 15 دن والا نہیں ملا، ابھی صرف 30 days والا جی ملا. 30. اور ابھی سر 10 تاریخ کو نا، 10 اگست کو انشاءاللہ 15 دن ٹھیک والا ہے ملے گا. تو میں آپ سے پہلے بھی شیئر کرتا ہوں، اور یہ دوسرا بھی انشاءاللہ شیئر کروں گا 10 تاریخ کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. بہت بہت شکریہ. دیکھیں آپ لوگ تقریباً کوئی 50 بندے بیٹھے ہیں اس وقت کلاس میں، آپ لوگ سب بات سن رہے ہیں. یہ بھی میرے ایک اسٹوڈنٹ ہیں، انہوں نے ماشاءاللہ ہماری انڈر سپرویژن پچھلے 2 ماہ میں بہت سارے اسٹوڈنٹس نے فنڈیڈ اکاؤنٹ پاس کیے ہیں. لوگ کہتے تھے فنڈیڈ اکاؤنٹ پاس نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. جنہوں نے ڈے ٹائم فارمولہ پہ عمل کیا، ہماری بتائی گائیڈ لائن کے مطابق کام کیا، اور اکاؤنٹ مینجمنٹ تھیوری کو سمجھا، ٹریڈنگ تھیوری کو سمجھا، تو ان سب لوگوں نے تقریباً ڈے بائی ڈے فنڈیڈ اکاؤنٹ پاس کر رہے ہیں. پہلے خالد نواز صاحب نے FTMO کا پاس کیا، اور ان کو بھی پے آؤٹ ملا ہے. آپ کے سامنے اچھی کمپنی کا پے آؤٹ ملا کرتا ہے، یاد رکھنا. ٹھیک ہے. آج یہ آپ کے سامنے جہازیب صاحب اپنی زبان میں بتا رہے ہیں کہ انہوں نے پاس کیا TFT کا 50K کا اکاؤنٹ، اور ان کو تھوڑا کام چونکہ انہوں نے کیا، ان کو بھی تقریباً $850 کا، جو پاکستانی روپوں کے مطابق 2 لاکھ روپے سے زیادہ رقم بنتی ہے مہینے میں، ان کو ملا ہے. انہوں نے کام خود تھوڑا کیا، لیکن پھر ان کو پے آؤٹ ملا. اگر وہ زیادہ کام کرتے زیادہ بھی ملتا ان کو. خالد صاحب کو $2500 کا ملا 15 سر دن کے ساتھ. سر ایک بات ایڈ کروں گا، آپ کی بات جی کاٹ رہا ہوں تھوڑی. سر ایک جی بات ایڈ کروں گا. سر 50 لوگ سن رہے ہیں نا. سر جی میں اتنا کہوں گا کہ سر میں نا بہت زیادہ اگر اس میں ایڈ ہوں نا، اور جی مطلب لوگ ایڈ بھی کرتے ہیں، اور جان پہچان بھی ہے، اسلام آباد کے کئی ٹریڈرز ہیں، ہر چیز ہے. لیکن میں اتنا کہوں گا کہ آپ جو مرضی ٹیکنیکل سیکھ لیں، جو مرضی سیکھ لیں. میں صرف آپ کو ایک بات بتاؤں حافظ بھائی، میں صرف آپ کو فالو کرتا ہوں، صرف آپ کو. ٹھیک ہے. مطلب ٹھیک ہے ادھر ادھر سے باتیں آتی رہتی ہیں، کوئی بائی دے رہا ہے، کوئی سیل دے رہا ہے، کچھ بھی ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں. فالو صرف آپ کو کرتا ہوں. اور سر اللہ کے فضل سے جب سے آپ کو فالو کیا ہے نا، نہ کوئی ٹینشن ہوتی ہے نہ کچھ، اور آرام سے بندہ وہ کر لیتا ہے، اپنی روزی روٹی آرام سے نکل آتی ہے. تو جی. میں سارے بھائیوں سے یہ ریکویسٹ کروں یہ گا کہ آپ کچھ بھی نہ کریں. اسپیشل یہ بات سنیں شاکر خان صاحب. ہاں میں بہاول پور صرف سے ان کا میں تعلق آپ ہے، یہ خود بھی ایک گروپ رن کرتے ہیں، میں اس گروپ میں ایڈمن ہوں، جی میں دوست ہے اب ہمارے بھائیوں آپ جیسے. سارے تو میرے بھائی آپ سب بہن ہیں. لوگ جو ہے نا اس کو خالد شاکر صاحب ضرور سنیں اس بات کو، ایسے کیونکہ میں شاکر میرے صاحب نے ہمیشہ ایک ہی بات کہی کہ فنڈیڈ اکاؤنٹ کمپنیاں کسی کو پے آؤٹ نہیں دیتی، ہمیشہ یہ بات سنی. نہیں آج نہیں یہ سر. دوسرا بندہ آپ کو بتا رہا ہے شاکر صاحب، ہاں نہیں نہیں دوسرا شاکر بندہ بھائی بتا میں رہا ہے کہ اس کو پے آپ آؤٹ کو بھی. ملا ہے، اور دوسری کمپنی کا ملا TFT کا. اور سر جی میں آپ شاکر بھائی آپ کو بھی، اور باقی سارے 50 بہن بھائی بیٹھے ہیں، سب کو یہ ضرور کہوں گا کہ آپ اور کچھ بھی نہ کریں. صرف جو حافظ بھائی چارٹ بتاتے ہیں، وہ جو ایکسل شیٹ بناتے ہیں وہ بنائیں، اور صرف ان کی بات کو نوٹ کر لیں. آپ فورکس میں نقصان نہیں کریں گے. یہ میرا تجربہ ہے اپنا، میں آپ کو اس لحاظ سے بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میرے خالد بھائی. نواز صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ ارے وبرکاتہ. جی خالد سر. نواز صاحب آپ تھوڑا سا نا پیچھے سے آواز گونج رہی ہے، ذرا کلوز کر لیں اپنے مائک کو. آپ ذرا تھوڑا سا، آپ نے بھی ماشاءاللہ ابھی پچھلے دنوں پے آؤٹ لیا ہے، اور اب TFT کا بھی عنقریب آپ کو ملنے والا ہے. آپ کا تقریباً 8 اگست کو 1 مہینہ اس کا بھی پورا ہو جائے گا. FTMO کا مل چکا آپ کو. ذرا 1 منٹ کا ذرا مختصر سا آپ بھی ذرا اپنا ایکسپیرینس شیئر کر دیں. شاکر صاحب بھی بیٹھے ہیں، سن لیں گے. باقی بھی تقریباً کوئی 50 بندے بیٹھے ہیں، ذرا آپ کی لائیو آواز سن لیں کہ کیسا رہا آپ کا ایکسپیرینس فنڈیڈ کمپنی کے حوالے سے. جی استاد صاحب، میرا جو سب سے پہلا اکاؤنٹ تھا نا FTMO کا تھا، 1 لاکھ والا. تو اس کو میں نے الحمدللہ 2 فیز پاس کیے، اور پہلا وڈرا مجھے جو ہے نا پہلی تاریخ کو ملا $2400 کا 15 دن کے بعد. اور الحمدللہ انہوں نے جو ہے نا ٹوٹل 3 گھنٹے کے اندر اندر مجھے وڈرا دے دیا، بہت کم ٹائم میں. ٹھیک ہے. 3 دن کہا، اور لیکن 3 گھنٹے میں دے دیا FTMO نے. یہ 3 گھنٹے میں دے دیا. اور انشاءاللہ بھی جو نیکسٹ وڈرا ہے میرا 15 تاریخ کو ہے، اور الحمدللہ 4,500 تک میں نے پروفٹ کر جو چکا ہوں. 15 تاریخ آپ کو کے ٹائم وڈرا آئے گا وہ آپ کا ہوگا FTMO کا. اور TFT کا کب تک آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا؟ 10K والا جو تھا آپ نے وہ بھی پاس کیا ہے، 2 اکاؤنٹ وہ پاس کیا، TFT بھی کیا ہے اور FTMO جی کا بھی. وہ انشاءاللہ 7 تاریخ ہو جائے گا. یہ 7 تاریخ آ رہی ہے نا، 7 7 اگست. تاریخ کو 30 دن پورے ہو جائیں گے، پھر آپ کا وڈرا آئے گا. جی انشاءاللہ اس میں بھی 1,000 پروفٹ میرا ہے الحمدللہ. چلو ماشاء اللہ.
10K वाले में जी 1000 प्रॉफिट माशाल्लाह अच्छा प्रॉफिट है। तो जी हाँ, और 1 लाख वाले में जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह 4,500 अभी है, तकरीबन 1 हफ्ता हो गया। जी और एशिया और यूरोप टाइम में काम करता हूँ मैं बस। बस आप कर ले, मैं जरा काफी बिजी होता हूँ, मैंने भी आपसे अकाउंट मैनेज करवाना है अपना फंडेड अकाउंट एक मेरा भी पास आपने कर दिया, क्योंकि मेरे पास तो टाइम ही नहीं होता, मैं ट्रेड ही नहीं ले पाता। जी उस्ताद अच्छा साहब सर, आगे बनता रहा जी इंशाल्लाह। अच्छा सर, ये एक बात पूछनी थी इन भाइयों से कि ट्रेड का लॉट साइज क्या रखते हैं? यार आधा कौन से 1 घंटा वाले? लेक्चर दिया अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी में। 1 नहीं इंटू सर, 500 की फंडेड रेशियो, फंडेड की बात कर रहा हूँ, जस्ट फंडेड 1 की। इंटू 500 की रेशियो होगी, चाहे फंडेड हो चाहे रियल हो चाहे डेमो, लार्ज साइज उसी के अकॉर्डिंगली होगा। लॉट साइज वो 50,000 मैनेजमेंट थ्योरी में लिखा तो हुआ है। जी, जो $50,000 का आपका अकाउंट होगा ना, ठीक है, उस पे आप 50 ऑन्स की ट्रेड लेंगे एक टाइम, ठीक है। बिल्कुल। अच्छा सर, 500 की रेशियो। पूछना था फंडेड अकाउंट के लिए अथेंटिक वेबसाइट कौन सी है जहाँ पे हम हाँ, अप्लाई कर अब सकते हैं? आपकी ऑथेंटिक है, अपनी किस्मत आप आजमानी होती है। मैंने पिछले दिनों सर्वे करवाया था ग्रुप के अंदर ही कि फंडेड अकाउंट कौन कौन इस्तेमाल करता है। शाकिर साहब ने भी किसी कंपनी का बताया था, लेकिन उस कंपनी को कोई एक भी हमें बंदे ने नहीं कहा कि उसको एक्सपीरियंस है। तो नई कंपनी में हम वो नहीं कर सकते अपना तजर्बा, सीधी सी बात है। जो कंपनी चल रही थी उन्हीं पे हमने फोकस किया था। हसीब अब्बासी साहब ने हमें माई फॉरेक्स फंड MFF कंपनी का बताया था, लेकिन कराची से एक सैयदा तालिया हैं, उन्होंने भी बताया था, और भी कुछ लोगों ने, शहजाद न्याजी साहब ने भी बताया जो फंडेड TFT के अथॉराइज्ड डीलर हैं, इन सब ने बताया था माई फॉरेक्स फंड का। लेकिन उसका मसला ये है माई फॉरेक्स फंड का कि वो पाकिस्तान में काम नहीं करती। पाकिस्तान में उनके साथ फ्रॉड इतने ज़्यादा किए कि वो पाकिस्तानियों से नाराज़ होकर चली गई। 1 साल से ज़्यादा हो गया वो नहीं है। जिनके पुराने अकाउंट चल रहे हैं उनको तो मिला, वो नंबर 1 कंपनी है। उसके बाद हमारे पास जो लोगों ने बताया हमें, TFT का बताया, द फंडेड ट्रेडर, ये पिछले 1 साल से पाकिस्तानियों के साथ भी काम कर रही है, अमेरिकन कंपनी है। तो इसमें ज़्यादातर लोगों के अकाउंट्स हैं, जो अभी बहुत सारे लोगों ने पास किए हैं, बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं। मेरा अपने पास भी है, द फंडेड ट्रेडर का ही अकाउंट है मेरे पास, तो मैंने लिया है अभी। तो बात यह है ना कि द फंडेड ट्रेडर का, अब हमारा पास कोई ऐसा बंदा नहीं था जो ये बात कह सके कि हमें द फंडेड ट्रेडर का, लोग कहते थे कि मिलता है, लेकिन हमारे पास कोई ऐसा बंदा नहीं था अथेंटिक जो हमें पे आउट दिखा सके बाकी उसको मिला। ठीक है ना, इत्मीनान तब होता है ना। तो मैंने खालिद साहब से कहा था कि आप ये काम करें और जो है ना आपने ही पास करना है। तो खालिद साहब ने मेरे कहने के ऊपर अकाउंट लिया, और कराची से हैं, हमारे सेज वाइज भी सीनियर हैं, बड़े हैं हमसे, तो एक अच्छा ताल्लुक भी है, सरपरस्ती वाला भी। वो मेरी सरपरस्ती TFT के तो आपने मुझे लेके भेजा जी, मुझे तो पता ही तो नहीं लगता लेना होता है। TFT का मैंने इनको लेकर दिया था, FTMO का भी इनके पास है। तो बहरहाल तो हमने तजर्बा किया कि आया पे आउट मिलता है या नहीं मिलता। सही है माशाल्लाह FTMO का पहला पे आउट जब आया तो मुझे यकीन हो गया कि फंडेड कंपनी सारी गलत नहीं है, मिलता है। बहुत सारे लोगों ने बताया उनके पास मुख्तलिफ, को ब्लू के नाम से, ब्लू कोई रॉयल के नाम से, पता नहीं किस किस नाम से, तो काड़ा से नदीम साहब है, उन्होंने भी 2 मुख्तलिफ कंपनी ढूंढ रखी थी, उनके पास काम किया। कराची से सैयद तालिया ने मुझे बताया, उन्होंने भी किसी फंडेड अकाउंट कंपनी का फेज 2 पास कर लिया, लेकिन उन्होंने उनको रियल अकाउंट नहीं दिया। ऐसे ही फैसलाबाद से खातून टीचर हैं नजफ, उन्होंने भी बताया कि जना उन्होंने कोई फेज 2 पास कर लिया था, लेकिन उनको जना उन्होंने लाइव अकाउंट नहीं दिया। बहुत सारी कंपनी फ्रॉड भी है, सीधी सी बात है। जैसे सही है की दुनिया में फ्रॉड है, ऐसे फंडेड की दुनिया में फ्रॉड है। जैसे कि आप तो लेकिन कुछ सही भी हैं, वो हमें ढूंढना और देखना होता है। अब जब एक तजर्बा हो चुका कि द फंडेड ट्रेडर ने, जहाजिब साहब ने भी बताया आपको, मेरे जानने वालों में पहला विड्रा इनको मिला है, जो भी उन्होंने आपके सामने बताया, इस्लामाबाद से जहाजिब साहब। लोग शेयर नहीं करते, शेयर करो तो पता चले ना। अब उन्होंने खामोशी रखा, तो मैंने उनसे उगलवाया है, तो उन्होंने बता दिया, तो उनकी मेहरबानी है। तो उन्होंने जो है ये पहला द फंडेड ट्रेडर का इन्होंने पे आउट लिया है। इसका मतलब है द फंडेड ट्रेडर ठीक है कंपनी, जिन्होंने इनको पे आउट दिया है। FTMO ने भी पे आउट दिया है। तो मैक्सिमम लोगों ने मुझे बताया था उस सर्वे के अंदर, शहजाद न्याजी साहब ने कहा था कि मुझसे भी शेयर करना अपने सर्वे, तो लोगों ने ज़्यादातर जो है ना 90% लोगों ने FTMO और TFT के बारे में बताया था कि सही कंपनी। सही है सही। तो जब सही कंपनी है तो डेफिनेटली तो उनके साथ काम भी कर रहे हैं। मैं तजर्बे के तौर पर मैंने कुछ लोगों को कहा आप लें जो लेना चाहते हैं, रिस्क ले। उन्होंने रिस्क लिया है माशाल्लाह। बहुत सारे, इकबाल मुर्तज़ा साहब हैं भावलपुर से, उन्होंने भी फेज 2 पास कर लिया, रेल लाइव पे चल रहे हैं इस वक्त वो। तो इसी तरह और भी कई लोग, रजब साहब हैं रहीम यार खान से, उन्होंने भी फेज 2 पास किया है। इन पिछले 2 महीनों में काफ़ी लोगों ने पास किया हमारे डे टाइम पर अमल करके, डे टाइम पे उन्होंने, तो काफ़ी लोगों ने पास किया।
तो जो इंशाल्लाह लजीज और लोग भी कर रहे हैं, मैं खुद कर रहा हूँ, इंशाल्लाह हम सब पास करेंगे तो फंडेड अकाउंट के ऊपर काम करेंगे, काम कर रहे हैं। लाइव अकाउंट मिलता है, फैसल चौधरी साहब है गुजरात से, इन्होंने भी लिया हुआ है फंडेड अकाउंट। तो किसी ने छोटा, किसी ने बड़ा, हर एक ने अपने अपने हिसाब से लिया हुआ अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक। तो काम कर रहे हैं सब लोग इंशाल्लाह अजीज। तो जब पे आउट मिल रहे हैं तो काम करते रहें। अब कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी गलत है, ये रिस्क आपका अपना है, हम कोई सजेस्ट नहीं करते। इसमें से इनिशियल फीस होगी कोई? ट्रेडर और एफटीएमओ इन दो बंदों ने इन दो कंपनियों से एक एक बार विड्रॉवल ले लिया। तो हम यही कहें कि यार दो बंदे, ये कंपनी बेहतर है, अगर आप इनमें कर लें तो आपकी मर्जी है, लेकिन हमारे सजेशन नहीं है। ठीक है, इसका आपने अपना खुद लेना। जवाब हो गया। अब मेरा ख्याल है टॉपिक की तरफ आते हैं। जी जी सर, जी बहुत शुक्रिया। 3 घंटे हो गए, ठीक है। तो अब हमारा जो आखिरी टॉपिक है वो है अमेरिकन सेशन फार्मूला। अब जो लोग वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं ना, वो काइंडली इसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दें अमेरिकन टाइम फार्मूला की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है अमेरिकन टाइम फार्मूला। अमेरिकन टाइम फार्मूला दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है इस न्यूयॉर्क। तो हम इसको अमेरिकन नहीं बल्कि न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला कहते हैं। हम न्यूयॉर्क टाइम के साथ काम करते हैं। तो ये टॉपिक शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से पहले की तरह दरख्वास्त होगी कि रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके लिए एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश कर दें और 3 बार इस्तग़फ़ार कर लें अल्लाह ताला से, ताकि हमें बोलने में, समझने में, बातचीत करने में आसानी हो सके। जी, आप सब लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? मैंने शेयर कर दी है। अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक। हमने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:15 बजे तक डे टाइम फार्मूला को डिस्कस किया। अब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो अफगानिस्तान के हमारे साथी हैं, हमारे स्टूडेंट हैं, काज़िकिस्तान, अफगानिस्तान और रशिया वाली साइड से, या कतर, सऊदी अरब, यूएई से भी मेरे कुछ स्टूडेंट हैं, इंडिया और बांग्लादेश से भी स्टूडेंट हैं, इंग्लैंड और बरतानिया से, अमेरिका से भी कुछ स्टूडेंट हैं, इन मुल्कों से, एक स्पेन से भी ऐड हुए हैं मेरे पास कुछ 1-2 स्टूडेंट। तो ये सब लोग अपने अपने मुल्कों के हिसाब से अपने पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक अपना टाइम एडजस्ट कर लेंगे। ये जो हमने गोल्ड ट्रेडिंग के लिए जो टाइम दिया हुआ है, ये पाकिस्तानी टाइम है, ठीक है। पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से अपनी अपनी मार्केटों का टाइम आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। अब दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट जो कहलाती है वो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। जब ये ओपन होती है तो हम तमाम को छोड़कर उस बड़ी मार्केट के टाइम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। अगरचे इस टाइम पे लंदन स्टॉक मार्केट चल रही होती है, तो दुनिया की दूसरी बड़ी मार्केट है, लेकिन जब चूंकि न्यूयॉर्क आ गया तो हमने लंदन को क्लोज कर दिया। हमने कहा लंदन क्लोज हो गया, जबकि लंदन चल रहा है, ठीक है। यूरोप के मुल्क चल रहे हैं, लेकिन जब अमेरिका आ गया तो अमेरिका की मार्केट बड़ी मार्केट है यूरोपों का, तो हमने अमेरिका को फोकस किया, ठीक है। एशिया की जब बात थी तो जब यूरोप की मार्केटें आना शुरू हो गई तो हमने एशिया को कहा क्लोज हो गया। इसी तरह अब यूरोप क्लोज हो गया, 5:15 बजे अमेरिका आ गया। अमेरिका आ गया, बर आज़म अमेरिका के मुल्क शुरू हो गए, मुख्तलिफ मुल्क। तो इनमें जो सबसे बड़ी मार्केट है बर आज़म अमेरिका की, वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये पाकिस्तान टाइम के मुताबिक आजकल गर्मियों में 6:30 बजे शाम को 6:30 पे ओपन होती है। तो हमने इसको अमेरिकन सेशन फार्मूला नहीं कहा, क्योंकि अमेरिका तो 5:30 बजे ओपन हो जाता है 5:30 पे। हमने इसको सिर्फ न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला। हमने न्यूयॉर्क सेशन में ही काम करना है, ठीक है। जो हमारी स्टडी, हमारी रिसर्च, हमारा रिसर्च पेपर न्यूयॉर्क के लिए, अमेरिका के लिए नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। हमने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ चलना है, काम करना है, उसके तहत ये फार्मूला है। अब यहाँ पे जो बात आती हुई जाती है, 6:30 बजे मार्केट ओपन हो गई, ठीक है। अमेरिका की सबसे बड़ी मार्केट न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक गर्मियों में शाम, गर्मी आजकल जो मौसम चल रहा है, गर्मियों में शाम 6:30 बजे 6:30 पे, और सर्दियों में शाम 7:30 बजे 7:30 पे ओपन होती है, ठीक है। यूरोप में और अमेरिका में 1 घंटा सर्दियों में आगे पीछे कर दिया जाता है, गर्मियों में आगे कर दिया, इस तरह का कुछ है, वो बिल्कुल उल्टा बोल गया हूँ मैं। सर्दियों में आगे कर दिया जाता है और गर्मियों में पीछे कर दिया जाता है। एशिया में ऐसा नहीं होता। ये टाइमिंग आप लोगों ने एडजस्ट कर लेनी है सर्दियों गर्मियों के हिसाब से टाइम थ्योरी पे, क्योंकि टाइम थ्योरी तो एक बार लिख दी गई है ना।
गर्मी सर्दी का जब कभी मौसम आया आप लोगों ने खुद देखना है कि उनका टाइम कब चेंज हो रहा है। टाइम थ्योरी पे अमल करते हुए जिस टाइम 6:30 पे ये मार्केट ओपन हो, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जैसे ही 6:30 पे ओपन हो, तो उस वक्त से गोल्ड मार्केट की रेंज नोट कर लें कि 6:30 बजे मार्केट कब ओपन, यानी कि न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज कब ओपन हुआ 6:30 में, ठीक है ना, क्या टाइम है, तो आपने टाइम नोट करना है। 6:30 के बाद जैसे ही न्यूयॉर्क सेशन में $15 रेंज पूरी हो जाए, बात वही है, दो हाफ है, ये सेकंड हाफ है, ठीक है ना, फर्स्ट हाफ भी $15 का था, सेकंड हाफ भी $15 का। जैसे ही ये $15 रेंज पूरी हो जाए तो पहली एंट्री ले ले, ठीक है ना। पहली एंट्री हमेशा रिस्की होती है, मैंने बोला है, लेकिन पहली एंट्री $15 पूरी होने पे, रेंज पूरी होने पे आपने ले लेनी है। तो और $20 रेंज पूरी होने पे दूसरी एंट्री लेनी है। वही बात है जो डे टाइम फार्मूला में कही, यही बात दोहराई जा रही है, ठीक है, कि आपने दूसरी एंट्री $20 रेंज पूरी होने पे लेनी है। दोनों एंट्रीज का एसएल वही $27 पे आप लगा देंगे, 27 पे लगा देंगे, ठीक है, $6-7 पे। और उसी तरह आपने प्रॉफिट बुक करना है ट्रेडिंग थ्योरी के मुताबिक, जो डे टाइम फार्मूला में बताया है। ट्रेडिंग थ्योरी में क्या होता है कि जो एंट्री आपने $15 पे ली है, खुदा ना खास्ता वो अगेंस्ट चली गई है, मार्केट $20 पे चली गई रेंज पे, तो आपने क्या करना है, सेकंड एंट्री $20 पे लेनी है। तो $20 से जब मार्केट का रिवर्सल होगा तो $15 वापस मार्केट आ जाए, $5 पीछे आ जाए, आपको प्रॉफिट दे रही हो $20 वाली रेंज वो, तो आप उसका प्रॉफिट भी बुक कर लें, और जो $15 पे आपने एंट्री ली है उसको नो प्रॉफिट और नो लॉस पे, यानी जीरो लेवल पे, उसको भी क्लोज कर दें, ठीक है। आपको इस सेशन में $5 मिल गए, फर्स्ट सेशन आपको $5 मिल गए, इसमें भी $5 मिल गए, आपको $8-10 बन गए। हमें $8-10 ही कमाने हैं, हमारा टारगेट टाइम उसके अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी के मुताबिक $8-10 ही है, 8-10 पॉइंट ही है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है ना। अकाउंट के हिसाब से, जिसका अकाउंट हिसाब से $5,000 का होगा, 5 औंस की, और जो 10 औंस की ट्रेड लेगा, वो जब 10 औंस की ट्रेड लेगा तो डेफिनेटली उसके वो जो है ना $50 बनेंगे एक सेशन में, तो दिन भर में $100 कमा लेगा, ठीक है ना। लेकिन जिसका अकाउंट $500 का है वो $8-10 कमा लेने, 8-10 पॉइंट है, सारी मार्केट आपके लिए नहीं है। आप ये सोचे कि हम $20 $30 का हम टीपी लगा के बैठे, तो वो आपको नहीं मिलेगा, आप मुंह देखते रह जाएंगे। मार्केट 1870 नहीं गई, मार्केट उस रेंज के अंदर है, आप रोज कमाएं, वो रेंज कभी महीने में एक बार पूरी होती है, ठीक है ना। वो मंथली खेलने वाले होते हैं कि वीकली खेलने वाले होते हैं, या 3-3 महीने तक उनके बड़े बड़े अकाउंट होते हैं, वो लॉन्ग इन्वेस्टर होते हैं। आप हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर, आपने अपनी रोजी करनी है, आपने 8-10 पॉइंट निकालने हैं, आपको $5 मिल गए न्यूयॉर्क में भी। और अगर मार्केट जो है ना $15 पे है, अगर $15 वाले ही रिवर्सल दे दिए $10 पे, आप $10 पे अपना प्रॉफिट बुक कर लें, दूसरी एंट्री की आपको जरूरत ही नहीं पड़ी, ठीक है। ये दोनों एंट्री, तो ट्रेडिंग थ्योरीज के मुताबिक आप लोगों ने $5 प्रॉफिट बुक करना है। एक आधा डॉलर अगर कम भी रह जाए तो आपने बुक कर लेना, एक बार निकल जाना मार्केट से, उसके बाद 2-3 घंटे के बाद जब मार्केट दोबारा से अपना वो करेगी फिर उसके बाद देखी जाएगी। लेकिन आपने ये देखना है, इसके अंदर अहम बात जो वो ये है कि मैंने लिखा अहम नोट, जिस दिन ये 4 डाटे हैं, 4 डाटे, इनमें 2 डाटे हैं, 2 दूसरी बातें हैं। एक है सीपीआई डाटा, ये है इन्फ्लेशन का डाटा, महंगाई का डाटा, ठीक है ना। ये अमूमन मंथ मिड में आता है, अमूमन किसी डेट को आता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। एक पीपीआई भी होता है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। पीपीआई की बात नहीं हो रही, यहाँ सीपीआई की बात हो रही, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, महंगाई का डाटा, ठीक है ना। इसकी बुनियाद ये है। दूसरा एनएफपी, जो जुमे को आ चुका, ठीक है, हर महीने के पहला जो जुमा होता है, फ्राइडे होता है, फर्स्ट फ्राइडे हर महीने का, ठीक है, आफ्टर फर्स्ट मंथ स्टार्ट होता है, उसके बाद जो पहला जुमा आता है, फ्राइडे आता है, उस दिन ये डाटा आता है, ठीक है ना। अमेरिका का डाटा होता है, डॉलर का डाटा होता है। एनएफपी जो अभी लास्ट फ्राइडे आया, एनएफपी, इन दो डाटों की, ये दोनों बहुत अहम डाटा होते हैं। एनएफपी होता है बेरोजगारी का डाटा, कि उनकी बेरोजगारी की शरह क्या रही पूरे महीने में, ये मंथली डाटा होता है। और सीपीआई डाटा है महंगाई का डाटा, जब लोग बेरोजगार होंगे, चीज़ें महंगी होंगी, तो डेफिनेटली उसका ताल्लुक रेट हाइक के साथ होता है, फेडरल डिसीजन से, कि आया हमने इस चीज़ों को मैयर कैसे करना है। किसी भी रियासत की जिम्मेदारी यही होती है कि उसके शहरियों को रोजगार मिले और महंगाई कंट्रोल हो। ये उस इदारे का, उस स्टेट बैंक का, उस मुल्क का, उस वजारत खजाना का जिम्मेदारी होती है। इसकी बुनियाद, इन डाटों की बुनियाद के ऊपर, और भी डाटे हैं छोटे मोटे सारे होते हैं, लेकिन ये खास डाटे होते हैं, इनकी बुनियाद के ऊपर ये फैसला करते हैं कि आगे हमने मॉनेटरी पॉलिसी क्या देनी है, शरह सूद बढ़ानी है, कम करनी है, या ऐसे ही रखनी है, या कोई और पॉलिसी जो भी होती है, वो इसकी बुनियाद, इन डाटों की बुनियाद पे वो बात करते हैं।
तो ये चौथे नंबर पे लिखा मैंने FOMC यानी फेडरल रिजर्व जो है उनका, स्टेट बैंक जो है अमेरिका का, उसका नाम FOMC। उनकी रेट डिसीजन मीटिंग होती है, ये साल में 8 मीटिंग होती है, तकरीबन 45 दिन बाद दूसरी मीटिंग होती है। हर महीने नहीं होती, किसी महीने होती है, किसी महीने नहीं होती। तो ये जो है इन बुनियादों के ऊपर, डाटा की बुनियादों के ऊपर फैसला करते हैं, अपनी पॉलिसी देते हैं। और ये अमूमन जब भी डाटा आता है FOMC रेट डिसीजन मीटिंग, ये अमूमन अमेरिका टाइम के यानी कि पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक रात को 11 बजे आता है, जब यूरोप और एशिया बंद हुए होते हैं, जैसे लास्ट टाइम आया रात को 11 बजे, और सर्दी आएंगी तो रात को 12 बजे आएगा। अमूमन यही टाइम होता है इसका। और अमूमन मंगल या बुध का दिन होता है, अक्सर बुध का दिन होता है, वेंसडे होता है, जिस दिन ये डाटा आता है, जब भी आता है, जब ये फैसला करते हैं। 2 दिन की मीटिंग होती है, 2 दिन के बाद मीटिंग के बाद ये प्रेस रिलीज जारी करते हैं, और उसके आधे घंटे के बाद जो वहाँ का चेयरमैन है फेड का, आजकल जो चेयरमैन है वो पावल है उसका नाम, उसकी स्पीच होती है। ठीक है, अच्छा ये स्पीच एक तो FOMC मीटिंग के बाद होती है, अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अंदर वो अपने मुआशी पॉलिसी के बारे में बात करता है, सवालों के जवाब देता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था। ठीक है, उसके अलावा भी इसकी स्पीचेस बीच में आती रहती हैं कभी कभी। तो जब इनकी स्पीच आनी होती है तो मार्केट स्लो हो जाती है, पता नहीं कोई ऐसी बात कहते हैं जिससे मार्केट हिल जाए। तो जब तक स्पीच नहीं आती, इन्वेस्टर, बड़े बड़े इन्वेस्टर इंतजार करते हैं, मार्केट नहीं चलती। ये बहुत अहम यानी कि बात होती है। जब ये बात कर लेता है, घंटा 2 घंटा गुजर जाता है, उसके बाद मार्केट फिर अपने हिसाब से चलती है, इसकी बात के ऊपर कि इसने कमेंट क्या दिया, कोई ऐसी बात कह दी इसने कि रेट हाइक करेंगे नहीं, कोई ऐसा सिग्नल दे दिया, मार्केट उसके अकॉर्डिंगली रिएक्ट करती है। इसलिए जब ये 4 बातें हों मार्केट के अंदर, तो उस दिन आपने क्या करना है, कोई ट्रेड नहीं लेनी। ये हमारा न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला कहलाता है। ये जो चारों बातें जो मैंने लिखी हैं, अहम डाटा फार्मूला जो है, वो हमारा अमूमन 5:30 बजे अमेरिका के टाइम पे ही होती हैं चीज़ें। ठीक है, और इन्हीं टाइमों में ही अकाउंट वाश हुआ करते हैं, ये भी याद रखना। बड़ी बड़ी मूवमेंट होती हैं, $50 भी हमने मूवमेंट देखी है, $70 में मूवमेंट देखी है। तो आप लोगों ने इन टाइम का खास ख्याल रखना, इन बातों का। ये बहुत अहम रिसर्च है हमारी। ठीक है, ये फंडामेंटल है, बहुत अहम रिसर्च हमने इस पर की हुई है कि कौन से हार्ड डाटा अहम नहीं होता, हार्ड डाटा इतनी बड़ी ताकत नहीं रखता। ठीक है ना, मैं आप लोगों को बता दिया करता हूँ इस डाटा की इतनी स्ट्रेंथ है, तो उसके मुताबिक काम करना होता है। ठीक है, अक्सर बताता हूँ। तो फंडामेंटल में मैं काम करता हूँ। जब फंडामेंटल आ जाते हैं तो याद रखना, टेक्निकल ये कैंडलें और ये जो ग्राफ हैं, ये फ्लैग और एम पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न और ये डाइवर्जेंस और ये वो सारी चीज़ें बेकार हो जाया करती है, याद रखना। ठीक है, फंडामेंटल होते इसलिए हैं कि रेंज को तोड़ दे। मार्केट का कुछ पता नहीं होता किस साइड पे चल रहा है। रिस्क ना लिया करें, अपने $5-7 $10 जो आपने कमाने हैं वो आपको मौका मिल जाएगा। बड़ी मूवमेंट में कभी ना उतरा करें, एक आधी बार शायद आप कमा लेंगे थोड़ा बहुत, लेकिन 4 मरतबा आप डूबेंगे। और हमेशा यही होता है, फिर लोगों के हज़ारों डॉलर के भी अकाउंट होने तो वाश हो जाया करते हैं। इस पे आपने अमल करना है, बहुत अहम बात है। टाइम थ्योरी के मुताबिक शाम को 5:15 बजे से लेकर 8:30 बजे तक, लंदन क्लोजिंग तक, आप लोगों ने काम करना ही नहीं है। खास तौर पर जिस दिन ये अहम डाटा फार्मूले हों या वीकली या मंथली क्लोजिंग हो। ठीक है, ये बातें ट्रेडिंग थ्योरी में हमने लिखी हुई हैं, तो इनका आपने ख्याल करना। तो जब ये डाटा हो तो कोई ट्रेड ना लें, मुकम्मल छुट्टी करें। ठीक है ना, कोशिश करें मुकम्मल छुट्टी। बाज़ औक़ात 8:30 के बाद भी मार्केट मजीद $10 अगेंस्ट चली जाती है, हम ट्रेड लेते हैं वो अगेंस्ट। इसलिए कोशिश करें, खासतौर पर छोटे अकाउंट होल्डर को छुट्टी करें, उस दिन काम ना करें। ठीक है, तो यूएस सेशन में एसएल हिट होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये भी आपको मैं बता दूँ। जो यूएस सेशन होता है, न्यूयॉर्क सेशन है, इसमें एसएल भी हिट हो सकते हैं, तो चांस भी काफ़ी होते हैं। इसलिए अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी पे अमल करते हुए ही लार्ज साइज लगाएं। ठीक है ना, अकाउंट मैनेजमेंट थ्योरी पे अमल करना है। लार्ज साइज लेने, इतनी लेनी कि जितना आप बर्दाश्त कर सकें। किसी भी सूरत में एक टाइम में 2 से ज़्यादा एंट्रीज हरगिज़ मत लें। एक सेशन अगर चल रहा है तो उसमें एक अगर आपने एंट्री $10 पे ले लिया तो दूसरी 15 पे लेंगे, बस। तीसरी नहीं होगी, उसका 21 पे असल उड़ाएंगे। आपने ये नहीं कि एक और एंट्री लेंगे तो फंसेंगे, कोई पता नहीं है मार्केट का। अगर आपने 15 पे लिया है तो दूसरी 20 पे लेंगे, उसका एसएल 27 पे है, तो 27 पे, तो आपने वो उड़वा लेना है, इंतजार नहीं करना, संभल जाए एक बार, उसके बाद देखी जाएगी, वो रिकवरी हो जाएगी, अगले दिन हो जाएगी, अगर उस दिन नहीं होगी तो। लेकिन रिस्क ना ले, ज़्यादा रिस्क ना ले, वरना कोई पता नहीं है मार्केट गिरी तो $100 नीचे आ जाए, कोई एतबार नहीं, आप फंस के खड़े हो जाएंगे और आपका अकाउंट जाता रहेगा और आपको टेंशन रहेगी, ना नींद अच्छी आएगी, ना भूख लगेगी, ना घर वाले अच्छे लगेंगे, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगेगी फिर आपको, क्योंकि आप चिड़चिड़े हो जाएंगे, आपका नुकसान हो रहा है, मुआशी नुकसान। ठीक है, जहन पर सवार होगा, डिप्रेशन में होंगे आप। रेंज पूरी होने से पहले ज़बरदस्ती एंट्री ना लें, याद रखें। जो हमने रेंजेस बताई हैं इनके मुताबिक काम करें, ज़बरदस्ती ना करें, मार्केट के साथ जिद ना करें कि मैंने लाजमी एंट्री लेनी है। किसी दिन नहीं भी एंट्री होती,
किसी किसी दिन काम नहीं भी चलता, छुट्टी भी करनी पड़ जाती है, ठीक है ना, किसी दिन को गाहक भी नहीं आता, कोई आते हैं एक आधा दिन ऐसा आ सकता है महीने में, तो ज़बरदस्ती एंट्री ना लें। अलबत्ता अगर मार्केट स्लो हो तो टाइम थ्योरी के मुताबिक रात को लंदन क्लोजिंग होती है 8:30 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक, अमेरिका का टाइम ठंडा हो जाता है, जो डाटा शेटो का असर होता है काफ़ी तक ठंडा हो जाता है, 8:30-9 बजे के बाद आप जो है ना स्कैल्पिंग ट्रेड, हम करते भी स्कैल्पिंग ट्रेड है, हमने $3-4 बुक करना होता है। स्कैल्पिंग का मतलब ये शार्ट टाइम फ्रेम में काम करेंगे हम, और एक रेंज के अंदर जब मार्केट आ जाएगी और हम $2-3-4 का अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, ये स्कैल्पिंग ट्रेड होती है, ठीक है ना। स्विंग ट्रेड भी कहते हैं उसको, छोटी छोटी हल्की फुल्की, ठीक है ना, मार्केट थोड़ा थोड़ा उतार चढ़ाव कर रही है, स्विंग ट्रेड कर रही है। स्विंग क्या होता है, टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं फिजिक्स की जुबान में, कि कभी इस किनारे आ रही है कभी उस किनारे जा रही है, एक सर्कल है उसके अंदर घूम रही है, ठीक है, इसको स्विंग ट्रेड कहते हैं। या मार्केट ऊपर से ऊपर चल रही है, थोड़ा सा $1 ऊपर जाती है, फिर $2 नीचे आती है, फिर जाके नया फिर दोबारा उठती है, तो फिर वो पहले वाले हाई से जैसे लीड वेव है उसके ऊपर जाके ना एक और डॉलर का ऊपर हाई बनाती है, फिर $1 नीचे आती है, नया लो, हायर हाई और लोअर लो, या हायर हाई हर दफा एक नया हाई लगा रही है, और लोअर हाई हर दफा एक नया लो हाई लगा रही है, ठीक है ना, थोड़ी सी ऊपर होती है फिर नीचे, लेकिन पहले वाला लो ब्रेक नहीं करती, उससे ऊपर लो लगाती है, इस तरह ऐसे नीचे उतरते हुए लोअर लो और लोअर हाई कि हर दफा उठती है लेकिन थोड़ा सा हाई लगाती है, लेकिन पहले वाला हाई ब्रेक नहीं करती, वापस आ जाती है, नया आके लो लगाती है, इसको लोअर लो और लोअर हाई कहते हैं। इसको एलिट वेव थ्योरी भी यही कुछ है, ठीक है ना, ये सारी बातें हैं। तो इसके अंदर आप अमल कर, इसको स्कैल्पिंग ट्रेड कहते हैं कि थोड़े थोड़े से पॉइंट के ऊपर आप अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर मार्केट ने पहली बार में 47 लगाया है तो आप कोशिश करें, मार्केट बाय ट्रेंड में चल रही है तो आप कोशिश करें जब दोबारा पहली बार में अगर आपने 47 पे ले ली एंट्री और आपको $2 मिल गए, आपने क्लोज कर ली, तो दोबारा 47 पे कोशिश करें ना ले एंट्री, 48 का इंतजार करें। क्यों, मार्केट नया हाई लगा सकती है, थोड़ा सा हाई देख सकते, क्यों ऊपर एसएल लगाते हैं लोग, उनको उड़ाने के लिए $1 ऊपर जा सकती है, $1.5 $2 जो भी मार्केट की ताकत चल रही है उसके मुताबिक, ठीक है ना। तो इसलिए कोशिश क्या करें कि उससे मजीद थोड़ा सा ऊपर जाए, अगर लो ट्रेंड में है तो ऊपर लो को देखें, लेकिन करें उस वक्त जब मार्केट आपको मौका दे, अदरवाइज ना करें। ये सारी बातें हमारी न्यूयॉर्क सेशन फार्मूला हो गया। नीचे मेरा फ़ोन नंबर, नाम लिखा हो हाफिज़ नसीर खालिद, लाहौर से मेरा ताल्लुक है, अबाई शाह डेरा गाजी खान है, और ये मेरा फ़ोन नंबर लिखा हुआ पाकिस्तानी कोड के मुताबिक 0333473963 ये मेरा मोबाइल नंबर है, ठीक है। तो कोई क्वेरीज हो तो इंशाल्लाह वेलकम। बाकी जो है ना ये हमारा डिस्कस हो गया, इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट अपने लेक्चर के अंदर ट्रेडिंग थ्योरीज को भी डिस्कस करेंगे, और बाकी जो चीज़ें रह गई हैं एशियन टाइम फार्मूला को भी डिस्कस कर लेंगे, और अहम डाटा फार्मूला को भी डिस्कस कर लेंगे, और जो फिर इसके बाद हम जो इंडिकेटर होंगे उनको भी डिस्कस कि खास अहम इंडिकेटर कौन से होते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलें, एकदम छलांगे ना लगाएं कि आज ही हमने सारा कुछ सीखना है, ऐसा नहीं होता। मैंने खुद 6 बरस में चीज़ें सीखी हैं और अभी सीख रहा हूँ, अभी स्टेप बाय स्टेप आगे चल रहे हैं। मैंने एक दिन हसीब भाई साहब से पूछा मुझे एलिट वेव थ्योरी का थोड़ा सा कंसेप्ट दे दें, तो उन्होंने कहा कि क्या आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस को ऊपर हासिल कर ली है, अगर नहीं की तो पहले वो तो कर लेना, उसके बाद आप इस तरफ भी आ जाइएगा। तो आप लोगों से भी मेरी यही दरख्वास्त होगी, जल्दबाजी ना करें, आराम आराम से पहले डे टाइम फार्मूला तो सीख लेना, टाइमिंग तो सीख लेना, मार्केट की साइकोलॉजी को समझना है हमने, इंडिकेटर, हम सारा पैसा सारा टाइम कैंडलों को सीखने में ज़ाय करते हैं, ग्राफों को सीखने में ज़ाय करते हैं, जिनकी अहमियत ही नहीं है मार्केट में, जिनका रिजल्ट ही नहीं है, जैसे ही मार्केट रेंज तोड़ के उड़ा के फेंक देती है हमें, कभी वो हमें वीकली वो टाइम फ्रेम में चला देते हैं, हम H1 देख रहे होते हैं, वो वीकली में चल पड़ती है मार्केट, ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर ऊपर से ऊपर जा रही है, नीचे से नीचे नीचे से नीचे जा रही है, कभी वो मंथली में चला देते हैं, हम वीकली देख रहे हो तो मंथली में चला देते हैं, कभी वो डेली में चला देते हैं। जो मार्केट मेकर बैठे हैं ऊपर, जिन्होंने मार्केट बनाई है तो उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाई है, आपके लिए नहीं बनाई। उन्होंने आपका नुकसान करेंगे तो उनका फायदा होगा, उनका पेट भरेगा, आप लोगों ने उनकी साइकोलॉजी को समझना, ठीक है, मार्केट की साइकोलॉजी को समझ के काम करेंगे। टाइम थ्योरी हमने एक नई चीज़ दी है, दुनिया में इससे पहले कोई रिसर्च नहीं है, किसी को नहीं पता था, हमने इसके मुताबिक काम किया, बड़े तजर्बात, बड़ा नुकसान, बड़ा कुछ किया, उसके बाद जाके चंद चीज़ें हमारे सामने आई हैं। ये हमारा टोटल निचोड़ है जो आप लोगों के आगे रखा है। हम टाइम थ्योरी सिखाते हैं, उसके मुताबिक ट्रेड सिखाते हैं, जिसका आपको फ़ायदा 95% ज़रूर होगा इंशाअल्लाह, अगर पूरी तरह इस पर अमल करें तो। जबकि इंडिकेटर्स कोई भी आप थ्योरी सीख लें, ठीक है ना, उसका फ़ायदा हार्डली आपको 20-30% होगा, लेकिन कभी कामयाब नहीं हो सकेंगे, याद रखिएगा। किसी महीने अगर थोड़ा सा कमा भी लिया तो मुस्तकिल नहीं होगी वो इनकम, अगले महीने उससे डबल लॉस करेंगे। जज़ाकल्लाह। अब हमारा ये सेशन एंड हो गया है, तो आप वीडियो रिकॉर्डिंग बेशक बंद कर सकते हैं, और कोई सवाल जवाब है तो कर लें मुख्तसर सा, फिर उसके बाद हम एंड करते हैं अपने आज की शेड्यूल।
जिन्होंने रिकॉर्डिंग की है वो मुझे बता देंगे कि उन्होंने रिकॉर्डिंग की है। बल्कि इसमें एक चीज़ मैं थोड़ी सी और बता दूं आपको, थोड़ा सा इंतज़ार कीजिएगा। इसमें चलो मैं आपको चार्ट दिखा देता हूँ एक। ये सैंपल के तौर पर मैं शेयर कर रहा हूँ आपके साथ चार्ट। ये न्यूयॉर्क का चार्ट है, न्यूयॉर्क टाइम का, ठीक है ना। न्यूयॉर्क सेशन में डिस्कस किया ना, इसमें हमने आपको बताया पहली एंट्री 15 पे, दूसरी 20 पे, ठीक है ना, करेंगे। और एसएल कहाँ लगेंगे? $27 पे। अब आप देखें, ये है 3 अगस्त। अच्छा, जिस दिन डाटा होगा उस दिन आप काम नहीं करेंगे, ये भी मैंने आपको बताया, सीपीआई और एनएफपी में, या पावर स्पीच या रेट हाइक में, ठीक है ना। अब आप इसमें देखें, ये अप्रैल का चार्ट है मिसाल के तौर पर हमारे पास। इसमें आप देखें न्यूयॉर्क सेशन ऊपर लिखा हुआ है, टाइमिंग लिखी हुई है। इधर आप देखें, ये कर्सर ऊपर नीचे हो रहा है, एनीवे आप इसमें देखें कि ये जो पहला है 3 अप्रैल को, आप देखें $18 मार्केट ने मूवमेंट की है न्यूयॉर्क सेशन में। आपकी एंट्री $15 पे थी, ठीक है। इसके बाद रिवर्सल आया होगा यकीनन, और आपको कुछ ना कुछ फायदा मिला होगा। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट डे 4 अप्रैल को $38 मार्केट ने मूव किया। डेफिनेटली ये ट्यूसडे का दिन है, इस दिन कोई ना कोई रेट हाइक हुआ होगा, कोई ऐसी खबर होगी जो हमारे पास सामने लिखी हुई नहीं है। तो या फिर इस दिन मार्केट खुलते ही, शायद मुझे याद है कि इसी दिन 2081 लगाया था मार्केट ने, शायद बहुत ऊपर चली गई थी, या शायद ये नहीं है बल्कि कोई और दिन नहीं है, ठीक है ना। बहरहाल जो भी है, इस दिन कोई अहम डाटा होगा, कोई न्यूज़ होगी, कोई मसला होगा जिसकी वजह से इतनी बड़ी मूवमेंट एक ही सेशन में मार्केट कर गई है, ठीक है। तो वो हमें पहले से चूंकि पता होता है तो उस दिन हम ट्रेड ही नहीं लेते। अब उससे आगे आ जाए 5 अप्रैल को, ये वीडियो जो आप बना रहे हैं उसके अंदर शामिल कीजिएगा इसको, इस चार्ट को। अच्छा, उसके बाद 5 अप्रैल को आप आ जाएं, $21 मूवमेंट हुई है टोटल न्यूयॉर्क सेशन में। 6 अप्रैल को आ जाएं, $14 मूवमेंट हुई है। 7 अप्रैल को फ्राइडे को छुट्टी थी, कोई गुड फ्राइडे होता है उनका, ईस्टर वगैरह का दिन, तो अमेरिका में छुट्टी थी। अब 10 अप्रैल को आ जाएं, $13 मूवमेंट हुई है। 11 अप्रैल को $10 मूवमेंट हुई है, ठीक है ना। $10 का मौका फिर भी आपको मिला, 8:30 बजे आपको पता चल जाता है मार्केट स्लो है, मिल गई आपको एंट्री। 12 अप्रैल को देखें $18 मूवमेंट हुई है। 13 अप्रैल को देखें $15 मूवमेंट हुई है। 14 अप्रैल को, ये फ्राइडे है, यकीनन इस दिन कोई अहम डाटा होगा या कोई अहम खबर होगी। मार्केट ने इस दिन 2005 का लो लगाया है यूएस सेशन में, और 2040 का हाई लगाया है। वीकली क्लोजिंग भी है, वीकली क्लोजिंग का हमारा ट्रेडिंग थ्योरी में ये लिखा हुआ है, एहतियात करें क्योंकि मार्केट सरप्राइज दे देती है उस दिन। वो दिन भी मंथली और वीकली क्लोजिंग जो है ना, शाम को न्यूयॉर्क सेशन में काम नहीं करना होता, यही बात हमारी ट्रेडिंग थ्योरी कहती है। इस दिन मार्केट भी कोई अहम डाटा की खबर होगी जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई $50 की, यकीनन कोई सीपीआई या मिड है 14 अप्रैल है, यकीनन कोई सीपीआई का डाटा होगा, कुछ ऐसा होगा इस दिन जो इतनी बड़ी मूवमेंट हुई है। एनीवे 17 अप्रैल को देखें $20 मूवमेंट है, 18 को $20 मूवमेंट है, 19 को $14 मूवमेंट है, 20 को $14 मूवमेंट है, और 21 तारीख को $26 मूवमेंट है। इस दिन भी कोई डाटा होगा, अहम डाटा होगा, जुम्मे का दिन है, वीकली क्लोजिंग है, ठीक है ना। लेकिन हमारा एसएल कहाँ होता है? $27 पे। तो मार्केट ने इस दिन भी एसएल हिट नहीं किया, तो ये होगा, अंदाजा तो हो जाता है ना, तो हम जरा पीछे हट जाते हैं मार्केट का। उसके बाद 24 अप्रैल को देखें $16 मूवमेंट है, 25 अप्रैल को $16 मूवमेंट है, 26 को $25 मूवमेंट है, 27 को $16 मूवमेंट है, फिर 28 को $13 मूवमेंट है। ये सिंपल आपको समझाया है, एक स्पेसिमेन दिखाया है अप्रैल के महीने का। इसी तरह मई जून के भी हैं, तो अब इतना टाइम नहीं है, वीडियो भी बहुत लंबी हो जाती है। इसी तरह अब आप देखें कि इसमें मैक्सिमम कितनी रेंज बनती है मार्केट की। आपका एसएल शायद महीने में एक आधी मरतबा हिट हो, अदरवाइज आपको बाकी सारा फायदा ही फायदा होता है। तो आप अपना फायदा करें, और जिस दिन एसएल हिट होना होता है ना, वो हमें अंदाजा हो जाता है मार्केट की मूवमेंट से। टाइम थ्योरी पे हम थोड़ी देर जो अमल करते हैं ना, हमें अंदाजा हो जाता है, ठीक है ना, कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, क्या दिन है और क्या हालात है। जब मार्केट बहुत ज़्यादा ओवरबॉट होगी तो डेफिनेटली सेल में भी जाएगी, और सेल में अमूमन वीकली मंथली क्लोजिंग पे जाती है, और आप देख रहे हैं, या फिर कोई अहम डाटा होता है, ठीक है, उसकी रिजल्ट में होती है। तो ये इतना हिस्सा जो चार्ट मैंने शेयर किया, इसको आप वीडियो में शामिल कर लीजिएगा, जो वीडियो है बना रहे हैं, एडिट करें, बाकी अननेसेसरी चीज़ें निकाल दीजिएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह। अब सवाल जो आप कर सकते हैं, आप किसी को कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं।